we studied that the restriction enzymes or the restriction endonucleases are those which work on the specific sites. ठीक है, तो restriction endonucleases ही हमारे हम लोग उसी की बात कर रहे हैं अभी. So this is restriction endonucleases are the enzymes that which works on the specific sites. ठीक है, where do they create their action? That is on the specific sites. And what are these specific sites called as? The specific sites, they are called as the palindromic sites. Palindrome. Okay, so palindromic sites. What are these palindromic sites? Especially if we say there is a word like say Malayalam. ठीक है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, पैलिंड्रोमिक साइट नहीं है ये, उसका एग्जांपल मैं आपको लिख से देती हूँ. सो दिस इज से देयर इज अ वर्ड मलयालम, MALAYAM. ठीक है, मलयालम. अगर मैं इसको फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड अगर मैं रीड करूं, हाउ डू आई रीड? इट इज MALAYAM. ठीक है, फ्रॉम दिस राइट टू लेफ्ट अगर मैं इसको पढ़ूं सेम वे MAYALAM. ठीक है, मलयालम. इज इट मलयालम द वर्ड? Malayalam. Okay, Malayalam. One word, 1 minute. It is not Malayalam, it is Malayalam. हाँ, तभी ये रीड करेगा. ठीक है, so this is, it is reading as MALAYALAM. अब उल्टा पढ़ो तो that is MALAYALAM, है ना? अब ठीक है, so this is the word that is Malayalam. So this is the word that is which reads both ways, that is from left to right or from right to left the same. ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स अगर हम कुछ फाइंड आउट कर सके तो दे आर द वर्ड्स बेसिकली दैट व्हिच रीड्स द सेम फ्रॉम फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट, दैट इज सेम. दे मे बी कंपेयर्ड टू एज द पैलिंड्रोमिक साइट्स, बट द वंस व्हिच वी गेट, ऐसे ही कुछ अगर हमें डीएनए के ऊपर मिलते हैं उनको हम ओरिजिनली पैलिंड्रोमिक साइट बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? डीएनए की. ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जो मैंने लिया है जस्ट टू से कि हाउ इट रीड्स. ठीक है, आप उल्टा करके लिख के भी देख लो, इट इज द सेम. उल्टा करके लिखने देखोगे, यहाँ से शुरू करो, इट इज MALAYALAM. तो ये वही बन गया ना सारा स्पेलिंग. ठीक है, सो इट इज द सेम. In layman language, these are the palindromes that which reads the same from front to back or back to front, from left to right or right to left. ठीक है, but coming to the palindromic sites, now what is the example for the one like say EcoR1? EcoR1 is the restriction enzyme whose example I'm saying, and the palindromic site for that is GA के बीच में ये अटैक करता है. तो palindromic site अगर मैं इस तरह लिखूं, this is one DNA strand GAAPTC. ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ. C has to bind with G, T has to bind with A, T has to bind with A has to bind with T, A has to bind with T, G has to bind with C. ठीक है, मैंने तो इसकी कोडिंग करी है with the components that which are complementary base pairs. ठीक है, but if I read from left to right, it is GAATTC. From right to left, it is GAATTC. है ना? So this is one example of the palindromic site. And the enzyme that is EcoR1. ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल था, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, that is just to understand what the palindrome is. Okay, reading from the same, that is left to right or right to left. They are the specific sites where these restriction endonucleases are going to work. ठीक है, clear? अभी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1 के लिए मैंने ये पैलिंड्रोमिक साइट यहाँ पे बोला. अब EcoR1 का एक्शन कहाँ पे होगा? इट इज गोइंग टू बी इन बिटवीन GA. ठीक है, G और A, इस G और A के बीच में ये अटैक करेगा और इस G और A के बीच में भी ये अटैक करेगा. ठीक है, सो इट हैज टू वर्क बिटवीन G and A, so it is EcoR1. How this EcoR1 has got its name? मतलब what is the, you can say, rules which are given, the rules by which the names are given to the various enzymes or restriction endonucleases. How the nomenclature has been done for these restriction endonucleases. I give you one example of EcoR1. ठीक है, अभी कहाँ से आया? This is the first word is the genera's first alphabet. Genera name का पहला alphabet, that is Escherichia
एस्टरीशिया, है ना. सो द फर्स्ट अल्फाबेट E इज द genera's फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट. ठीक है. CO comes from the coli, that is the two alphabets of its species. ठीक है. coli CO. R is its strain. R क्या है? That is the strain. Rough strain, smooth strain. ठीक है. And this one, this is not I. This is one in Romans. So one in Romans, that signifies that in what order it is, which number of the enzymes in an order if isolated from ECO, that is Escherichia coli. ठीक है. मतलब अगर Escherichia coli से let's say 3-4 enzymes isolate हुए हैं, तो this enzyme जिसकी हम नाम ले रहे हैं, वो what number of the enzyme in the order of its isolation, what is that number of the enzyme? It is first enzyme which has been isolated from Escherichia coli, or it's the third enzyme which is isolated. ठीक है. So it is the number of enzyme you can say isolated in an order. ठीक है. In an order, जो enzyme at which number this has been isolated from the same organism. Okay. So this is EcoR1. एक एग्जाम्पल के साथ हमने उसका nomenclature ये जो बोला है मैंने. So nomenclature कैसे देते हैं किसी को भी? That is from the first alphabet is given from the genera name. The next two alphabets are given from the species name. Then added its strain and the number of the enzyme which has been isolated in an order for this from the same organism. ठीक है. So this is the palindromic sites जिन पे ये एक्शन करता है. अब एक्चुअली ये RDNA टेक्नोलॉजी एक्शंस करती हैं, तो कॉम्बिनेशंस में मतलब रिजल्टेंट्स में क्या होगा, ये तो मैंने सिर्फ बताया है ना कि एक्शन करता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, दैट इज फर्दर यू विल बी मेकिंग इट फॉर द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यू राइट डाउन दिस डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स, डायग्राम या आप कह लो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. So here in this representation, we are going to show the steps followed by this EcoR1, the steps of the RDNA technology. That is a stepwise mechanism, how it works on the host or the foreign DNA and how it is then combining. Okay. So the steps for the formation of a recombinant, for the formation of a recombinant. कैसे बना? With the help of the enzyme that is restriction endonuclease. ठीक है. So steps for the formation of a recombinant with the help of restriction endonuclease. ठीक है. So restriction endonuclease, यहाँ आपको सिंपल में पूछा जा सकता है कि restriction endonuclease enzyme की फंक्शनिंग शो करो इसे in the form of a flow chart or in the form of a diagram. ठीक है. हाउ इट वर्क्स. ठीक है. ये भी क्वेश्चन में आ सकता है दैट हाउ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्रिएट्स इट्स एक्शंस. ठीक है. वो भी आ सकता है यहाँ इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है. सो अभी यू हैव टू अगेन गो बैक टू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ द बीटी कॉटन जो हमने पहले लिया. अब उसमें क्या था हमारे पास, देयर आर टू ऑफ द डीएनएज व्हिच नीड इट्स रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. जिसको रिकॉम्बिनेट करना है आपको, फॉरेन डीएनए एंड द होस्ट डीएनए. अब यहाँ मैंने आपको ये भी बोला था इट कैन बी डन थ्रू द वेक्टर्स, थ्रू द व्हीकल्स, और इट कैन बी डन विदाउट इन्वॉल्विंग एनी वेक्टर. ठीक है. तो विदाउट इन्वॉल्विंग वाली टेक्निक्स आपको एंड में पढ़ाएंगे. फिलहाल देयर इज यू कैन से अ वेक्टर डीएनए व्हिच वी विल बी आइसोलेटिंग, व्हिच विल बी कटिंग एंड देन एडिंग द फॉरेन डीएनए टू इट. यानी कि बैसिलस thuringiensis का डीएनए हमने एक वेक्टर डीएनए पे लगा दिया, रिकॉम्बिनेंट क्रिएट कर दिया, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी set in the host. That are the further steps of this whole technology. यहाँ सिर्फ हमने restriction endonuclease enzyme का काम समझना है. ठीक है. इसमें सिर्फ इतना करना है. So अब यहाँ पे I take the example that is, one second just. हाँ जी बेटा. So I take an example from this particularly that say there are two of the DNAs. One is the vector DNA and another is a foreign DNA. Okay, so I am taking this green colored vector DNA and a purple colored foreign DNA ताकि आपको पता रहे कि हमने ये कहाँ पे combinations किया है. ठीक है.
Now say for vector DNA, this is the DNA strands, na? You people know how to create the structure for the DNA, right? Like this. ठीक है, ये DNA strand है ना? The DNA strand that leaves with the last pair जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था, that is a palindromic site for GAATTC. So I am writing this as the next sequence of the DNA. मतलब DNA का open sequence जो मैंने यहाँ पे show कर दिया. And also this will be CTT as complementary sequence. ठीक है, ये complementary आ गया ना for the vector DNA. ठीक है, these are all combined. ये ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है. ठीक है, so this is one DNA. This is combined पूरा fragment. Right? Done. Similar way, this EcoR1 who is going to create its action will find for such a palindromic site in the foreign DNA also. So if you make the foreign DNA out here, so foreign DNA is again what that is. It has to be the DNA that is, it has to be like proper structure, the proper structure of the DNA, that which is working as such with the same sequence. Okay, so what is the same sequence out here? It is the GAATTC. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे it is GAATTC. समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, similar manner this is GAATTC and this is again a full segment of DNA. Done. यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने क्या किया है, हमने सिर्फ वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए में वो वाली पैलिंड्रोमिक साइट्स को ओपन करके बताया है. यहाँ पे डीएनए में ये डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है ना. तो हमने क्या किया, सिंपल हमने पैलिंड्रोमिक साइट को ओपन करके शो कर दिया वेयर दे आर गोइंग टू, वेयर इज दिस EcoR1 गोइंग टू क्रिएट एन एक्शन. ठीक है, तो नाउ यूजिंग द EcoR1 दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन endonuclease which I am going to use, that is EcoR1. What are the palindromic site for this? GAATTC. ठीक है, reading both way same as from 3' to 5', 5' to 3', दोनों polarities में same read करेंगी. They are the palindromic sites on the DNA which are the special sites, specific sites to be acted by the restriction endonuclease. Done. ठीक है, अब इनका site of action क्या है? क्योंकि इनकी जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नाम मिला था, कटिंग है ये करना, मॉलिक्यूलर सीजर है, तो कट कहाँ करेगा? EcoR1 का स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन क्या है? दैट इज GA के बीच में, है ना. तो उसने EcoR1 में हमने EcoR1 वेक्टर डीएनए के कल्चर में भी डाल दिया, EcoR1 फॉरेन डीएनए के कल्चर में भी डाल दिया. अब वो क्या करेगा? EcoR1 ने दोनों साइट्स पे लोकेशन को ट्रेस किया, GA साइट को देखा, पहले तो पैलिंड्रोम को लोकेट किया, GA साइट मिली, वहां पे इसने कटिंग कर देना. डन. ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे इसमें फॉरेन में भी, फॉरेन डीएनए जो है उसके अंदर भी ये यहाँ पे इन्हीं पोजीशंस पे कटिंग करेगा. ठीक है, सो दीज आर द एरोज व्हिच शोज दैट वेयर इट हैज टू मेक इट्स कट, इंसिजन कहाँ लगाना है. ठीक है, नाउ एज अ रिजल्ट this portion has to be removed. जहां पे ये हुआ है एक्शन, ये इतना सारा जो डीएनए का पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा, है ना. फ्रॉम एरो टू एरो ये रिमूव हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, मतलब व्हाट इज लेफ्ट देयर, ये तो रिमूवल हो गया. मतलब ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ऐसे पूरे 2 स्ट्रैंड थे तो ये टूट गए. ठीक है, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड डीएनए का जो यहाँ पे अवेलेबल है, हम उसके बारे में बात करेंगे. दे विल बी जस्ट कटिंग फ्रॉम विद इन. तो इस तरह से पूरा ये स्ट्रैंड टूट जाएगा. ठीक है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, इतना स्ट्रैंड अलग हो जाएगा. ये एंड नहीं है, ये एंड नहीं है, टर्मिनल एंड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगा रहे हैं? एंडोन्यूक्लियस विद इन द लेंथ. ओके, ठीक है. सो अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ? देयर इज द डीएनए अगेन. वो जो डीएनए आपने बनाया था वही वाला डीएनए आपको फिर से बनाना है. सो दिस इज समथिंग लाइक जो आप बना रहे थे. सेम वे यू हैव टू ओपन इट आउट. जितना बन पाएगा डीएनए का स्ट्रैंड उतना बना लेना. आफ्टर दैट यू शो दिस दैट देयर इज अ जी विच इज लेफ्ट. ठीक है, एक जी रह गया और बाकी नीचे क्या रह गया? CTTA.
ऊपर वाला तो ये पोर्शन उतर गया ना, अलग हो गया, ठीक है। When such an incision is made, this is the blunt ends, ठीक है। ये सेम एंड्स नहीं है, ब्लंट एंड्स है ना। ब्लंट क्यों है? क्योंकि ये इरेगुलर एंड्स है, एक एंड बड़ा है, दूसरा एंड छोटा है। So the blunt ends which are created, they become sticky in nature, स्टिकी होते हैं, ठीक है। अब अगर हमने फॉरेन डीएनए के कल्चर में वेक्टर डीएनए डाल दिया तो क्या होगा, ये दोनों अपने स्टिकी एंड्स को कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। लेकिन अगर वो फॉरेन डीएनए में आपने कटिंग की और फॉरेन ही गला पड़ा है, या वेक्टर में किया तो वेक्टर ही गला पड़ा है, तो वापस ये दोनों फिर से कंबाइन हो जाएंगे। ये स्टिकी एंड्स है ना, दोनों ही ब्लंट बने ना, ये भी तो बना, ये भी तो बना। तो ब्लंट एंड्स को अगर अवेलेबिलिटी दूसरी चीज की मटेरियल के साथ में होगी, देन ओनली इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द अदर डीएनए, ठीक है। सो इन अ कल्चर, जब हमारे पास वेक्टर डीएनए की हमने कटिंग करवा दी, फॉरेन डीएनए की करवा दी, अब यहाँ पे फॉरेन डीएनए का ब्लंट एंड भी अवेलेबल था, वेक्टर का भी अवेलेबल था, तो ये क्या है, फॉरेन डीएनए विल इनकॉर्पोरेट इनटू द वेक्टर, ठीक है। ये इसके साथ जो है पेयरिंग कर लेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ही चाहिए मेन तो, सो स्टिकी एंड्स है तो फटाफट से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करें। सो दिस इज अगेन द डीएनए, ठीक है, द डीएनए व्हिच हैज टू क्रिएट द ओपन एंड्स, ठीक है। तो इसमें ओपन एंड्स क्या आएंगे हमारे। अब यहाँ पे कैसे कटिंग करेगा ये इसने यहाँ से किया ना, जी से, और ये वाला सारा पोर्शन रिमूव कर दिया, है ना। यहाँ पे ये वाला पोर्शन रिमूव हो गया, नीचे वाला एल, यहाँ पे ऊपर उल्टा एल, यहाँ पे नीचे एल, ठीक है। सो अब रह क्या गया इसके पास, दिस इज लेफ्ट विथ सी टी टी ए ए, जी तो गया, बाकी नीचे में रह गया कल्ला जी, ठीक है। अगेन द ब्लंट एंड्स डन, सो दे आर ऑल्सो द कंप्लीट स्ट्रैंड, ये भी कंप्लीट स्ट्रैंड, ठीक है जी, डन। अब इसके बाद जो यहाँ पे स्टिकी एंड्स बने हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस वन डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। सो डीएनए फ्रेगमेंट विल बी फॉर्म्ड राइट हियर, द डीएनए फ्रेगमेंट इज फॉर्म्ड बाय joining or the combining of the blunt ends, ठीक है, या स्टिकी एंड्स जो है वो कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब जब ये कंबाइन कर जाएंगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, अ सिंगल डीएनए हैविंग बोथ वेक्टर एज वेल एज द फॉरेन पार्ट, ठीक है, फॉरेन डीएनए पार्ट। तो ये क्या है, दिस इज द डीएनए ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर का है, वेक्टर में ऊपर वाले स्ट्रैंड पे सिर्फ जी था, नीचे वाले में सी टी टी ए सब, ठीक है, ये इतना सारा था, है कि नहीं। और इधर देखें तो ए टी टी सी, तो ये इसके बीच में फिक्स कर दो, जैसे ब्लॉक्स फिट करते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फिट कर दिया ए टी टी, दिस इज टी अगेन एंड सी, ठीक है। और साथ में इसके पास क्या था नीचे वाले स्ट्रैंड में, जी, ठीक है। तो ये हमने जी ले अंदर, यहाँ पे ये जी आ गया, डन। और यही वाला हमारा फर्दर द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए है, दैट इज द डीएनए फ्रेगमेंट दैट विच इज फॉर्मिंग द फर्दर चेन, ऐसा फॉरेन डीएनए। अब वापस पूरे को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इज इट क्रिएटिंग द सेम सीक्वेंस जो फॉरेन डीएनए में था, क्या वो वापस मिल गया आपको, GAA TTC GAA TTC, that was the initial one, है ना। So this is how the EcoR1 as being the restriction endonuclease has worked. Done? समझ आया। वापस फिर से हमारे पास सीक्वेंस वही हो गया, क्योंकि हमें मेन क्या है, सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। वो सीक्वेंस अब ये इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इट हैज बीन यू कैन से एडजस्टेड विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेक्टर डीएनए। नाउ व्हेन इट विल बी गोइंग इनटू द होस्ट, देयर अगेन द सेम टाइप्स, वहां पे कटिंग होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगेगा, वहां पे फिर से जाके कटिंग होगा। अब वहां पे जो फॉरेन डीएनए पार्ट है, ये वाला पार्ट वेक्टर डीएनए से कंबाइन करने के बजाय कंबाइन करेगा होस्ट डीएनए से, क्योंकि वेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द होस्ट सेल। वेक्टर क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जैसे प्लाज्मिड, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन,
Now you can write this as the recombinant DNA. अब क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पे दोनों का मिक्स फॉर्म में आया है, so what this is a recombinant DNA. Okay, so this is a recombinant DNA. Done. Any doubt to anyone? If you people have not understood anything, any step in this, Anji beta, is this all clear? Kindly raise your hand if you have any doubt. Anji, is this clear? Have you got the concept full and final? Okay. Okay. So no doubts. Proceeding further. Now this was the action of the restriction endonuclease. ठीक है, restriction endonuclease का तो एक action हो गया जिसमें ये vector के अंदर ये incorporate हो गया. अब vectors को आगे further क्या किया जाएगा, host cell के अंदर introduce किया जाता है. होस्ट सेल के इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, यानी कि चेंजेस आएंगे. दोस ट्रांसफॉर्मेशंस दे विल बी लीडिंग टू द फर्दर चेंजेस ऑफ इट्स फिनोटाइप एज वेल. जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, जीन्स में चेंजेस लेके आता है और उसके बाद वो अपना फिनोटाइप जो है वो चेंज कर देता है. ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल भी एक लिया बीटी कॉटन का, जिसमें हमने ससेप्टेबल जीन को कट करके रिमूव करवा दिया और उसकी जगह पे रेजिस्टिव जीन को लगा दिया. ठीक है, तो रेजिस्टिव जीन जब ये आ गया तो एक्शन चेंज हो जाएगा. पहले वो ससेप्टेबिलिटी शो कर रहा था तो केमिकल्स का एक्शन हो पा रहा था उस जीन के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर, लेकिन अब रेजिस्टिविटी शो कर रहा है तो उसका एक्शन नहीं हो पाएगा. सो इट इज गोइंग टू गेट द रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल्स एंड हेंस शो इट्स फुल यील्ड ऑफ द क्रॉप, जो भी प्रोडक्ट है. ठीक है, तो दैट इज हाउ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी वर्क्स. आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो दिस इज द वेक्टर डीएनए that has been incorporated with the foreign DNA. उसके लिए भी steps आप अलग से बनाओगे. So next is, if you have completed this, then you are start with the next, that are the steps for the rDNA technology. That is the full rDNA technology shown diagrammatically. How you will show it diagrammatically, that how this rDNA technology works. In just a few diagrams, you have to show it. How you show the steps for recombinant DNA technology. How it works. What are the various steps involved in it? So there was a foreign DNA. Okay, this is, let's say, the foreign DNA. Okay, so this is a foreign DNA from which the desired gene has been identified. Okay. Then there is a vector DNA. Vector DNA is what? It is circular. Plasmid is a circular. Plasmid is the most commonest form of the vector. Okay, that is why I'm time and again I'm saying for the plasmid. So this is the DNA, that is, it is circular DNA for the plasmid. Okay, having the 2 strands. Similar way में जैसे अभी आपने diagrammatically किया है ना, तो same way में this is the vector having the 2 strands of the DNA that are in the vector. So this is vector DNA. Done. Firstly, what has been done is, first सबसे पहले क्या किया जाता है, वेक्टर डीएनए का एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है वो लोकेट करके वहां पे कट किया जाता है ताकि ये ओपन हो जाए टू रिसीव द फॉरेन डीएनए. यू विल थिंक कि ये तो क्लोज्ड है, ये तो सारा राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो फॉरेन डीएनए कहाँ से आया. ठीक है, सो फर्स्टली इट्स स्पेशल साइट, दैट इज द origin of replication site, ORI site, that is located, and a cut is made from where the foreign DNA gets incorporated. ठीक है, so opening its one side से ये वाली site इसकी open हो गई. ठीक है, the DNA they are made with the blunt ends. ये देखो ये blunt ends आ गए. ठीक है, blunt ends हो गए ना. This is the, ये देखो यहाँ पे blunt ends नजर आ रहे हैं. ठीक है, so open ends DNA के vector DNA के open ends जो हैं वो available हुए, and hence this foreign DNA is going to incorporate into it. Whole of the DNA is not going to incorporate, only the desired gene which has been isolated from the foreign DNA, that will be going into this. ठीक है, so say we have this foreign DNA also, we have cut it already. ठीक है, ये हमने smaller part इसका cut करके रख दिया है,
and this is the one which is going to be incorporated into the open site of vector DNA. ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी डीएनए को यहाँ बीच में से इंसाइज करके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ इसको ऑलरेडी अलग कर दिया हुआ. ठीक है, दीज आर नॉट द टर्मिनल एंड्स अगेन, ये टर्मिनल नहीं है बेटा, टर्मिनल नहीं है तो अलग दूसरा स्ट्रैंड भी यहाँ पे बना दो कि बीच में से कहीं से लिया. ओके, इट इज बीच में से लिया है, इट इज नॉट द टर्मिनल एंड. एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, ये एंडोन्यूक्लियस है. ठीक है, सो वंस दिस फॉरेन डीएनए हैज बीन आइसोलेटेड विद इट्स डिजायरेबल जीन, it is getting incorporated into the vector DNA. So what is shown here on this arrow, that is the incorporation of foreign DNA. आगे desired gene नहीं देना, not the whole length, only the desired gene of the foreign DNA is incorporated into vector DNA. ठीक है, so it is incorporated into the vector DNA. Done. When this is incorporated, also the enzyme called as molecular glue, that are the ligases, joins or fuses that particular open ends. ठीक है, जैसे ये DNA का पोर्शन आएगा बीच में आके फिक्स हो जाएगा, तो ओपन एंड्स हैं तो उसकी लाइगेजिंग यानी कि ज्वाइनिंग करवा देगा. ठीक है, so also there is a role of ligase enzyme for joining the DNA. ठीक है, join the DNA, joins DNA. Ligase is an enzyme called as a molecular glue. ठीक है, as a result what is going to be there, a single vector with its incorporated foreign DNA also, that is the desired part. So I am just making it a bit darken ताकि आपको ये अच्छे से क्लियरली नजर आ जाए वेक्टर. तो यहाँ पे हमारा ये डीएनए का जो पोर्शन है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया एज दिस. ठीक है, एंड द रेस्ट इज द वेक्टर्स ओन डीएनए. ये कम्प्लेक्स मिल गया इसको. ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज द वेक्टर डीएनए लाइक दिस. ठीक है, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए, राइट. दिस लीड्स टू further transformation, है ना, and then forming a single. यहाँ पे से आगे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जब ये होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. सो दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट सेल. ठीक है, होस्ट सेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. जब ये ट्रांसफॉर्मेशन डन हो गया तो इस सेल को हम लोग अगेन एंड अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड करवा सकते हैं. तो द सेल्स डिवाइड. ठीक है, सेल्स यहाँ पे आप इसमें पूरे में लिख दो. सेल्स जो हैं दे अंडरगो द डिवीजन. ठीक है, सो दिस इज द सेल्स, दे डिवाइड, अंडरगो द डिविजन्स एंड फॉर्म्स इट्स कॉपीज. ठीक है, सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म्स न्यूमरस कॉपीज. कितनी सारी कॉपीज जनरेट करवा दी जाएंगी, और वो जो सारे सेल्स हमारे पास अवेलेबल हो पाए हैं, दे आर द वंस दैट विच हैज बीन द मॉडिफाइड और जेनेटिकली ट्रीटेड टाइप ऑफ द सेल्स. नाउ दीज विल बी फर्दर यूज्ड फॉर द प्रोसीडिंग्स. ठीक है, मतलब आगे जो क्रॉप लगानी है अब वो इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की लगाई जाएगी जिनको हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन किया है, चेंजेस दिलवाए हैं. ठीक है, clear. So the foreign DNA introduced into the vector DNA, this is called as a vector technique. If the foreign DNA is not introduced into the vector DNA, then that is called as a vectorless technique. And that is also very important. Vectorless technique के ऊपर आपको क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है बोर्ड्स में, तो when we will be doing that, it is also very important. And these two diagrams which we have done today, they are also equally very important. One was to show the action of restriction endonuclease. Another is to show the action of the RDNA technology. Means that was including the steps of the action for the restriction endonuclease जो अभी हमने इससे पहले बनाया. अभी ये है steps of RDNA technology. पूरी टेक्नोलॉजी के steps. जब आपने सेल्स डिवाइड करके कॉपीज बना दी तो ये पूरी टेक्नोलॉजी है. जब आपने सिर्फ उसको ग्लू किया यानी कि आपने मिक्स किया, दैट वाज द सिंपल एक्शन ऑफ. यहाँ जब भी आपने सिर्फ कट किया था, ग्लू करना तो उसका काम नहीं था, लेकिन
कटिंग करना स्पेसिफिक साइट्स पे जब शो किया, दैट वाज द एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन बच्चे करते हैं ज्यादा, इनको ध्यान से समझ लो, दोनों डायग्राम्स में क्या क्या शो हो रहा है और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइप ऑफ द टूल फॉर द RDNA टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज दिस restriction endonuclease. Clear? After this, we will be studying further about the jelly electrophoresis and the furthermore steps. So today's time is also over. Any doubts to anyone from today's lecture? Anji beta. Any doubts to anyone?